न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत बंद में 25 करोड़ लोग शामिल। सिलीगुड़ी में क्रिकेट विवाद में झड़प, शिक्षकों की अनदेखी पर उद्धव ठाकरे का हमला। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। भारत में 25 करोड़ श्रमिक और किसान संघ शामिल, रणदीप सुरजेवाला बोले। कर्नाटक में AICC प्रभारी और कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भारत बंद को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज भारत बंद का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया है, जिसमें से इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, INTUC, C2 सेवा, UTUC जैसे संगठनों के साथ साथ कई अन्य यूनियनों ने भी भाग लिया है। ये बंद 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिक और किसानों के समर्थन से हो रहा है। Today, Bharat Bandh has been called by 10 trade unions, including INTUC, INTUC, C2, SEWA, LPE, UTUC, and dozens of other trade unions. I am told that over 25 crore workers and farmers unions are participating today in Bharat Bandh. Why Bharat Bandh? Perhaps because BJP's new translation is B for Bandh Karo, J for Jobs Chino, and P for Fasad Karwao. Today, the trade unions of the country are on strike on Bharat Bandh. Why? The first and most principal issue is there are no jobs for the young in the country. Over 30 lakh jobs in public sector undertakings in Government of India are today lying vacant, but Prime Minister Modi and BJP government refuses to fill them. Some of the examples are, there are 2,50,000 vacancies in Indian Railways. There are 1,55,000 vacancies in India's armed forces, our Army, Navy, Air Force. There are 85,000 vacancies in Central Armed Police Forces, CRPF, BSF, ITBP. A question must be asked, why is Government of India refusing to fill up these 30 lakh vacancies and provide jobs to India's youth? Another facet is unemployment. Even for, as per admitted rate is at about 7.5%. As per Center for Monitoring of Indian Economy, it is over 10%. Among the graduates and postgraduates, unemployment is nearly 30%. Unemployment in India is at a 45-year high. There are no jobs. And that's why trade unions are trying to draw attention of Modi government by going on Bharat Bandh today. Manrega, the instrument of livelihood for the poor, marginalized, SC/ST OBCs is under attack by Prime Minister Modi and his government. The budget for Manrega has got stagnated at about 86,000 crores. Out of that, 10,000 crores are always paid in last year's dues. We gave 100 days of statutory guarantee of work every year. But Government of India has now shown that we only provide 44 days of work and not 100 days of work. 7 crore people, Manrega workers, have lost rights to work on account of linkage of Manrega with Aadhaar. These are questions that our trade unions are today raising. Wealth inequality is one of the biggest issue that plagues India today. Amir or Amir, Garib or Garib. Friends, 10% of Indians have 77% of India's wealth.
while the bottom 15% of Indians have only 10% of India's wealth. How will the country run? India today is the 50th poorest country in the world by way of per capita income, next only to Bangladesh, next only to Cambodia, Haiti and Kenya. The world per capita income is over $14,000. Ours is $2,900 per year. India today ranks at 111th rank out of 125 in global hunger index. India today ranks 134th out of 193 countries in the Human Development Index. India today ranks 127th out of 146 countries in the Global Gender Gap Index. India today ranks 121 out of 173 in Global Quality of Life Index. And India today ranks, this is for you, 159th position out of 180 in the Global Press Freedom Index. That's why trade unions are on strike. And our economy is in huge distress today. Why? I want to give you 4 or 5 indices. There is a huge drop in motorcycle and scooter sales used by common people. The companies are saying so. There is a huge drop in sale of fast moving consumer goods. Hindustan Lever is saying so, Dabur is saying so, and Marico is saying so. Who buys a packet of Maggi, a packet of biscuits? Common middle class, salaried class people. There is a huge crisis in textile sector. From Tirupur in Tamil Nadu to Panipat in Haryana to Surat in Gujarat, there is a 30% production drop. That means people are not buying enough. They don't have the money to buy. There is a huge crisis in the real estate sector. There are nearly 10 lakh units for middle income and low income groups that are lying vacant. People are buying flat worth hundreds of crores, but there is no money with salaried class to buy a flat for 50 lakh, 40 lakh, 30 lakh rupees. That is the crisis. And there is wage squeeze. I am not saying so. FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce, along with Quest Corp Limited, they did a survey. And that survey told us that while wages have increased by 0.8% to 5%, inflation is 5.7 to 6%. So wages are not even increasing as per the inflation rate. Where should the middle class go? Where should salaried class go? Where should the poor go? I am sure you as journalists also face the same quandary every day at home. And 80% of India's workforce is in unorganized sector. The same survey says that 60% of India's workers don't have a written contract. Then how will they have job security if they don't have a written contract? 53% of India's workers don't have any social security. That means no insurance, no pension, no nothing else. This is the crisis that is building in India. And that's why India's trade unions and 25 crore workers are on strike today. We urge upon Modi government and the BJP, both in Karnataka as also nationally, to open their eyes and see the problems that people face today. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सिलीगुड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में
बागरकोट इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के दौरान पथराव भी हुआ, जिससे कि इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये घटना उस समय हुई जब टूर्नामेंट के दौरान कुछ विवाद बढ़ने लगे और दोनों गुटों के बीच टकराव हो गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने इलाके में तैनाती बढ़ा दी है। फिलहाल इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और पुलिस स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही है। लड़की लोग को टोकता है, हम लोग का बहन सब चलता है। फिलहाल बंद कर दो। गोंडी लग रहा है, मैं सीधा लेकिन কত বড় ঢিলগুলো চালাচ্ছে ঢিলগুলো দেখেন ঢিল না, এটা কালবার দিয়ে মারছে। আমাদের কাছে মরম হয়েছে, নিজে আছে, আমরা বের করি। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षकों की समस्याओं को नजरअंदाज करना सरकार के लिए सही नहीं। मुंबई में आजाद मैदान में शिक्षकों की विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों की उचित मांगों को नजरअंदाज कर रही है और यह असंतोष का कारण बन सकता है। विधिमंडळात येण्यापूर्वी आझाद मैदानला गेलो होतो आणि आझाद मैदानामध्ये एकतर विना अनुदानित शिक्षक आणि दुसरं म्हणजे गेले अनेक वर्ष आम्हाला घरं द्या ही मागणी करणारे गिरणी कामगार या दोघांची आंदोलनं तिकडे सुरू आहेत। मला एका गोष्टीचं वैषम्य वाटलं, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन इकडे सुरू आहे, लोकप्रतिनिधी इकडे आलेले आहेत, परंतु लोक ज्या व्यथा त्यांच्या वर्षानुवर्ष मांडतायत ते मात्र आझाद मैदानात तिकडे आंदोलन करतायत। साहजिकच आहे, शिक्षकांना सुद्धा आम्ही वचन दिले की आम्ही तुमच्या लढ्यामध्ये, तुमच्या न्याय हक्काच्या लढाईमध्ये तुमच्या सोबत आहोत। गिरणी कामगारांचा तर प्रश्नच नाही, कारण गिरणी कामगारांचा संप जर का तांत्रिकदृष्ट्या पाहिलं तर अजूनही सुरू आहे आणि त्यावेळेला या गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली। वन थर्ड हा जो काही प्रकार केला गेला, गिरणी कामगारांची घरं तर गेलीच, गिरण्यांच्या जमिनी गेल्या, तिकडे टॉवर्स उभे राहिले, अनेक मॉल उभे राहिले आणि ज्या गिरणी कामगारांनी रक्त सांडून घाम गाळून ही मुंबई उभी केली, नवे संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करून ती मिळवून दिली, तो गिरणी कामगार मात्र स्वतःच्याच नगरीमध्ये
बेघर झाला. आमच्यावरती नेहमी एक आरोप केला जातो जो अर्थातच खोटा आहे की शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काय केलं. माझं सरकार जर का यांनी पाडलं नसतं तर साहजिकच आहे मी यांना सर्व गिरणी कामगारांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील पोलिसांना सुद्धा घरं द्यायला सुरुवात केलीच होती. पण विशेषतः गिरणी कामगारांना पोलिसांना ही मुंबईमध्ये घरं दिली असती. पोलिसांना मिळत आहेत पण अजूनही दिली असती. आज आमची हीच मागणी आहे की एका बाजूला गिरणी कामगार हा मुंबई बाहेर फेकला जातोय, त्यांना शेलू आणि वांगडीमध्ये पाठवलं जाते आणि धारावीच्या माध्यमातून अदानीला मात्र अख्खी मुंबई आंदण दिली जाते. तर आमची आग्रहाची मागणी आहे की गिरणी कामगारांना धारावीमध्ये घरं द्या धारावीकरांसोबत आणि अदानींचे टॉवर हे शेलू आणि वांगडीला उभे करा. जाऊ द्या तिकडे देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानींनी जरूर टॉवर बांधावे, नाहीतरी त्यांना भरपूर TDR मिळालेलाच आहे. तो TDR त्यांनी देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती वापरावा, तो TDR त्यांनी शेलू आणि वांगडीला वापरावा, तिथे सगळे टॉवर बांधा. पण ज्यांनी हक्कानी मुंबई मिळवून दिली त्या गिरणी कामगारांना मात्र तिथे पाठवण्याच्या ऐवजी गिरणी कामगारांना धारावीत घरं द्या. गिरणी कामगारांना कुर्ला मदर डेअरीची जी जमीन ही सुद्धा दिलेली आहे अदानीला, तर तिथे गिरणी कामगारांना घरं द्या आणि अदानींचे टॉवर हे शेलू आणि वांगडीला जाऊ द्या. आमचं काही म्हणणं नाही. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानीने टॉवर बांधावे आमची काही म्हणणं नाही आहे. तर अशा या गोष्टी आहेत. आणि शिक्षकांना सुद्धा तुम्ही वाटेल तसं वेडवाकडं इतर कामं देऊन वापरून घेता. म्हणजे मराठीचा मुद्दा आता गरम झालेलाच आहे. नुसता हिंदी सक्तीचा GR त्याचा विरोध करून चालणार नाही. तर मी मराठी माणूस तर एकवटलेला आहेच. आमचं म्हणणं परत परत सांगतोय की कोणत्या भाषेला विरोध नाही पण सक्तीला विरोध आहे. त्याच्यामुळे हिंदी सक्तीच्या GRला विरोध करून उपयोग नाही आहे. तर तो GR काढणाऱ्यांना, तो GR लादणाऱ्यांना, हिंदी सक्ती करणाऱ्यांना आपण विरोध केला पाहिजे. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार बंद का उद्देश्य लोगों के दिमागों में खोलना है। बिहार बंद में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि बंद का उद्देश्य केवल विरोध नहीं बल्कि लोगों के दिमागों को खोलना और लोकतंत्र की महत्व को समझना होगा। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से चेतावनी दी कि लोकतंत्र केवल बातचीत और संवाद से पनपाता है, न कि एक तरफा फैसले से। देखिए, मैं समझता हूँ सैद्धांतिक तौर पर पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता है। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करें उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित नहीं है। मनोज जी, जिस ज्ञानेश कुमार वो तो कह रहे हैं कि एक्यूरेट इलेक्टरल रोल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आप एक कस्टोडियन है, लेकिन उसमें उससे पहले की चीज है कंसल्टेशन। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय है। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। CEO बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा
कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं। तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खनन विभाग में सुधार, पारदर्शिता से हो रहा खदानों का आवंटन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2014 के बाद खनन विभाग में किए गए सुधारों पर गौर करते हुए कहा कि अब खदानों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। उनके मुताबिक इससे न केवल खनन क्षेत्र में सुधार हुआ है बल्कि गांव में रहने वाले लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। रेड्डी ने बताया कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला खनिज कोष की स्थापना की गई है, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लोगों के लिए रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के नाते जिम्मेदारी संभालने के बाद एक अलग अलग रिफॉर्म्स माइनिंग सेक्टर में किया है। जो पहले तो जो माइन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में 2 करोड़ मतदाता मताधिकार से वंचित किए जा सकते हैं। बिहार में रहने मतदाता सूची संबोधन को लेकर बिहार बंद रैली पर सीपीआई नेता हनान मोहाल ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि ये अखिल भारतीय बंद, ट्रेड यूनियन बंद और किसान बंद के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश भर में मताधिकार से वंचित करने की साजिश के खिलाफ है। मोहाल ने आरोप लगाया कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को जानबूझकर मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। ड्यू टू द एंटी पीपल, एंटी पुअर एंड एंटी पेजेंट and undemocratic policy of Narendra Modi government during, and also the carving of democratic rights through undeclared emergency in last 11 years, life of the people has become miserable and unemployment is unprecedented. Price rise also taking toll of every individual. Income is not increasing. There is no work. And in that situation, the right of the people also are under attack. And farmers are suffering because the same suffering, they are not getting the price of their crops. And they are insisting for MSP, but Modi betrayed the farmers, not doing that. Then workers also under attack with the 4 labor code. Already they have started implementing it. In certain states, 12 hours work they are trying to implement. And trade union rights and all things will be carved. In that situation, the people of the country, Indian workers, peasants, agricultural workers, students, women, employees, and all sections are fed up. Middle class also fed up because there is no middle class job, no government recruitment, and public sector is become giving, selling to the multinational corporation. The corporation are gaining in the chronic capital and common people suffering is unprecedented. In that situation, the working class of this country, they decided that we cannot accept this without challenge. So they 10 central trade union and all the employees federation and others, they decided that they will hold all India general strike on 1st 20th April, but because of this war situation, they changed the date. 9th July was agreed to hold the strike. Today is the day of struggle all over the India. And farmers and workers, agricultural workers, we extended support to the workers because workers and peasants, they are the basic backbone of the Indian production. And so workers and agricultural workers and farmers, they decided to extend the support and to organize rural band. Village area band will be organized by the agricultural workers. That now in the morning at 6 a.m. started all over the country, and we hope it is an unprecedented band against Modi's anti-people policies. Bihar also, along with the All India band, trade union band, Kisan band,
the Bihar political parties, they have given a special call for bond against this conspiracy to defranchise more than 2 crore voters in Bihar. So because of that, they are also on the street. So Bihar strike will be total, no doubt about that. But the Chief Election Commissioner said that democracy. But how it will be decided? Last 75 years, we are developing a system. Voter list is there. Every year, the voter list is updated. If people die, they remove. If new born, they are added. It's a continuing process. But intensive that electoral role, it never had it. And for that, the way they have decided, that is totally against the democratic principle. They are challenging the citizenship of the voters. But in Indian constitution, it is universal franchise. Who borns in this country, automatically they become the voters. So in that situation, they are saying the birth certificate of mother and father. Can Narendra Modi, I challenge, can Narendra Modi produce the birth certificate of his father and mother? If Narendra Modi can and Amit Shah can produce their birth certificate of mother and grandmother, then we will see that it is possible. No people have that. Common people had not there. Poor people have no record, and now they want to defranchise it on the government. So it is a conspiracy against the universal franchise, voting rights. We cannot accept that. This is one of our demand in the strike. And this is another barbaric instruction of the state power. Because business is your fundamental rights. Anybody, small business, tea shops, pan bidi shop, and all these things for common things on the wayside, people run the business, and with that small income they survive somehow. But if government is saying, last year they said your name of the shopkeepers will be written on the shop, so that whether it is Muslim or not, it can identify it. So Muslim shops will not be able to sell things. So in that way, see, they want to suppress and destroy the minority economy. And this year again they are starting. This is all anti-democratic, this is anti-constitutional, anti-minority, and this is a barbaric. That cannot be accepted by any democratic people. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में 51 स्थानों पर त्रासदी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया राहत कार्य। हिमाचल प्रदेश में हालिया प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई त्रासदी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 51 स्थानों पर गंभीर नुकसान हुआ है और इस त्रासदी ने स्थानीय लोगों के दैनंदिन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नड्डा ने कहा कि राहत कार्यों की शुरुआत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले और राज्य भर के लोग राहत सामग्री भेज रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की तत्परता को भी रेखांकित किया, जो किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। आज हिमाचल प्रदेश में मुझे मंडी जिले में आने का मौका मिला है और जो सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 51 स्थानों पर जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसने। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम सुक्सू ने मंडी में राहत शिविर में आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्सू ने आज मंडी जिले में बलगड़िया राहत शिविर का दौरा किया और हालिया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों की समस्या सुनी और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने न केवल जमीनी हालात का जायजा लिया बल्कि राहत शिविर में दोपहर का भोजन भी आपदा पीड़ितों के साथ किया, एक मानवीय संदेश देते हुए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जो सरकार की तरफ से मिल सकता है, जो हमारे हाथ में है ना, वो तो ये है कि हमारा जो सरकारी जगह है उसमें फॉरेस्ट है आपका सारा, हाँ, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं, उसमें दिल्ली वाले ही परमिशन देते हैं। दिल्ली की सरकार जो पैसा है वो मैं आपको दूंगा, पैसा आपको घर बनाने के लिए भी दूंगा,
गाय गई उसका भी दूंगा, बकरा गया उसका भी दूंगा, भेड़ गई उसका भी दूंगा, मकान बनाने के लिए भी दूंगा, वॉशरूम बनाने के लिए भी दूंगा, सबको दूंगा। आपसे मैं टंगे बनाने आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी संघर्ष समिति ने उदयपुर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की। वाराणसी में ज्ञानवापी संघर्ष समिति द्वारा फिल्म उदयपुर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर DMACT आलोक कुमार वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तर्क किया जा रहा है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करे। इससे विपरीत इसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को दर्शाया गया है। शायद आई एम नॉट श्योर, शायद उस फिल्म में कुछ चीजें हैं कि जाति विशेष के संबंध में रहा होगा। इस पे आप लोगों का ये ज्ञापन में ये कहना है कि उसको टैक्स फ्री किया जाए और जाति विशेष से संबंधित कोई भी बात उसमें नहीं कही गई है, बल्कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बातों को उठाया गया है। इसलिए वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए सिनेमा हॉलों में और उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये जो ज्ञानवापी संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने आगे के दिनों में क्या इसमें आप विचार करेंगे, क्या करना? हाँ, निश्चित तौर पे ये ज्ञापन आया, पब्लिक की तरफ से डिमांड आया, तो इस पर कार्रवाई तो होगी। इसमें क्या कुछ है? ये ज्ञानवापी संघर्ष समिति है, इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स करके कोई फिल्म रिलीज हो रही है जिसके बारे में इन्होंने ये हमको दिया है, एक आपत्ति प्रकट करी है कि उसमें किसी जाति विशेष से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, बोली गई है। दूसरी बात ये कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। तो जब रिलीज की जो बात इन्होंने कही है तो उस पर यह कहना है कि जहां भी सिनेमा ये लगे, फिल्म लगे, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। मुस्लिम समाज की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि फिल्म को रिलीज न किया जाए और उनकी ओर से भी ये मांग की जा रही है। उन्होंने भी आपको ज्ञापन भेजा है। अभी हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन तो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड होता ही है और वो ये आज जो हमको ज्ञापन मिला है वो ज्ञानवापी संघर्ष समिति की तरफ से। सर, इससे पहले जो ज्ञापन मिला था वो किसने दिया था? वो ज्ञापन भी मैं कल था नहीं, कल मैं इलाहाबाद में था। अभी वो मैं फिर भी अभी उसको शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हो रही है, सावन का पहला दिन है, जुमे की नमाज भी है। बड़ा मसला ये है कि पूरी व्यवस्था को किस तरीके से आप लोग संभालेंगे, क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया, क्योंकि मुस्लिम समाज लगातार इस फिल्म को लेकर गुस्से में है। इससे पहले भी देखिए ये ज्ञापन आज मिला है और बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इस मंच पे डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और निश्चित तौर पे है कि इस फिल्म में ऐसे कंटेंट है सर कि जो सीधे कुछ एक ऐसे धर्म विषय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अंजुमन इंतजामिया का ये कहना है कहीं कहीं अराजकता हो सकती है, खासतौर पर काशी धर्म नगरी है, सावन का महीना है, ये तमाम विषय इसको लेकर फोर्स की ही जो बात है, अवेलेबिलिटी फोर्स भी हम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। और फिल्म को पास होना या न होना ये हमारा विषय नहीं, ये सेंसर बोर्ड का विषय होता है। सेंसर बोर्ड ऑलरेडी इसीलिए बैठा होता है कि वो फिल्मों को देखता है कि किसी की भावनाएं आहत न हो, और अगर वहां से पास है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोकने का कोई औचित्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है, तो क्या जब फिल्म लगेगी तो जो दर्शक होंगे, जो श्रद्धालु हैं, जो भी देखना चाहते हैं, सिक्योरिटी रहे कि वहां पर बिल्कुल वो देखेंगे, क्योंकि वो जब हो गया है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया, तो फिर हमारे लेवल पे कुछ रह नहीं जाता है, सिर्फ एक पर्याप्त सुरक्षा बल रह जाती है, वो हम लगा देंगे। इससे पहले भी देखा गया है कि जुमे की नमाज जब हुई है और जब ऐसे इश्यू रहे हैं तो ज्ञानवापी के आसपास बड़ी संख्या में सर इकट्ठा हुई है, भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इस बार भी क्या इसको लेकर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कुछ और अलर्ट की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? श्योर,
निश्चित तौर पे, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है, सेंसिटिविटी रहती है, संवेदनशीलता रहती है, निश्चित तौर पे फोर्स बढ़ाई जाएगी। विरोध भी है सर? हाँ बिल्कुल, ये आज जब ज्ञापन आए तो निश्चित तौर पर उस पर बात होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 62 लाख नहीं अब 2 करोड़ वाहन कबाड़ में जाएंगे। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ EOL यानी पुराने प्रदूषण वाले वाहनों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की नीतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारद्वाज ने कहा कि पहले ये योजना केवल दिल्ली के 62 लाख पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने तक सीमित थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ाकर लगभग 2 करोड़ वाहन तक पहुंचा दिया गया है, जिसमें दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेट नोएडा, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहर शामिल है। देखिए, ये जो सरकार है ये फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है और इन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वालों को, इन्होंने पड़ोसी राज्यों के कई शहरों को जो है मुझे लगता है बर्बाद कर दिया इन्होंने। और इनके बोए हुए बीजों की वजह से आज ये 5 शहर भी दिल्ली के साथ फंस गए। इन्होंने CAQM को खत लिख के कहा कि CAQM जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हम CAQM के साथ हैं, इसी तरीके से प्रदूषण कम होगा, हमें सिर्फ समय दे दीजिए और ऐसा समय ले लीजिए जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में भी ये बैन लगाया जाए। CAQM ने मान लिया। CAQM ने कह दिया कि 1 नवंबर से अब ये बैन दिल्ली के अलावा 5 शहरों में लगेगा, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में। अब जो दिल्ली का पुरानी गाड़ी वाला आदमी जो पहले कहीं नोएडा से या गुड़गांव से पेट्रोल भरवा लेता, अब वो भी नहीं होगा। और जहां पहले 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ी को देने की तैयारी चल रही थी, अब करीब 2 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी और 2 करोड़ नए वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिकेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी सांठगांठ है। ये 2 जुबान में बात करते हैं। दिल्ली वालों को अलग बात कहते हैं, CAQM को अलग बात कहते हैं। दिल्ली वालों को क्या कहा उन्होंने कि साहब देखिए, गाड़ी की उम्र से तो प्रदूषण का कोई लेन देना नहीं है, प्रदूषण तो कोई नई गाड़ी भी कर सकती है, पुरानी गाड़ी के साथ किसी का भावात्मक जो है कनेक्शन भी हो सकता है। ये बात लिखी कहीं नहीं, ये बात लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कही गई, अखबारों में छपवाई गई। CAQM को कही गई कि साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ी मोहलत दे दीजिए और सब जगह लगा दीजिए। CAQM ने मान लिया। अब मुझे ये बताएं रेखा गुप्ता, अब वो किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुमने जो CAQM को कहा, CAQM ने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? तो इन्होंने दिल्ली और आसपास के सब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। CYL पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र के बीच अहम बैठक। दिल्ली में एक अहम बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने CYL नहर परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। भगवंत मान ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित है, लेकिन व्यवहारिक समाधान निकालना जरूरी है। आज बहुत ही गंभीर विषय पर माननीय जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सैनी साहब, आज SYL पे मीटिंग थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और काफी पुराना चल रहा है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, वो कहते हैं हमें नहर चाहिए। काफी गंभीर विषय पर बातचीत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई और एक उम्मीद थोड़ी बनी ये है कि जो ऊपर का पानी जो इंडस ट्रीटी रद्द हुई है उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं आ सकता, झेलम का तो हमारा चैनल नहीं है, चनाब और रावी का आ सकता है, पौंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा में। अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है, तो क्योंकि चैनल तो पंजाब ही है, चैनल पंजाब है उस पानी का, तो हमें आगे करने में क्या दिक्कत रहेगी? हम तो भाई गनैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने दुश्मन को भी जंग में पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है, हरियाणा तो भाई है ना हमारा, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं, हमारी रिश्तेदारियां, हमारे फुफ्फा, मामे, चाचे साझे हैं। तो
मंत्री साहब से मैंने बात की है कि सर इसको फास्ट ट्रैक पे लेके हमें ऊपर से अगर 23 MF आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 23 MF, मतलब 23 मिलियन एकड़ फीट पानी ऊपर से आ जाएगा हमारे पास। हम 2-3 MF के लिए लड़ रहे हैं, दोनों स्टेट। अगर 23 आ गया तो हमें क्या दिक्कत रहेगी? 2-4 नहरें पंजाब में बन जाएंगी, उन नहरों का पानी पंजाब की खेती को भी मतलब मिलेगा, आगे हरियाणा चला जाएगा, आगे मध्य प्रदेश तक चला जाएगा, जहाँ तक मर्जी। लेकिन चैनल तो पंजाबी रहेगा ना, रिपेरियन तो पंजाबी रहेगा ना, और रिपेरियन का पहला हक होता है। तो मैंने BBMB की मैंने शिकायत की कि सर हमारे ऊपर क्यों ये मतलब थोप रखे हैं ये लोग, मतलब हमारे पानी पर डाका मारने के लिए रखे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा 70% फुटबॉल में पंजाब और हरियाणा देता, पानी आप हमको देते नहीं, फिर कैसे सर गमलों में उगाएंगे गेहूं? कैसे उगाएंगे फिर हम? 185 लाख मीट्रिक टन चावल पंजाब देता है, 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब देता है देश को। हमें कोई दिक्कत नहीं है देने, पर कम से कम हमें फिर माहौल तो दो ना। हम बॉर्डर स्टेट भी हैं, लड़ाई भी हमारी है, उधर लड़ाई भी हमारी होती है, मरने के लिए भी हम रखे हुए हैं। कोई तो कंपनसेट किसी तरफ से तो ठंडी हवा का बुल्ला आए, कोई झोंका आए ठंडी हवा का। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप सही पक्ष रखा है, और सैनी साहब ने भी कहा कि जी हमारा, मैंने कहा जी ये पता नहीं 1955 की, 1971 की, 1972 की बातें लेके बैठ जाते हैं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। अब कब तक ये नसूर हम झेलते रहेंगे? हमें हमारा पीछा छुड़वाओ, हमें अपना पानी मिल जाए, उनको उनका पानी मिल जाए। वही वकील, वही मीटिंगें, ये वो देश निर्माण के लिए होना, देश की तरक्की के लिए, क्या झगड़ों में पड़ गए। अब हमें समझ ये नहीं आता हम पाकिस्तान से लड़ें या हरियाणा से लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि बैठ के बात करेंगे। 5 अगस्त को बात होगी, 13 को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली में ही बातचीत यही होगी। लेकिन पानी देने से पहले नहर निर्माण की बात की जा रही है, जो जमीन का नोटिफिकेशन हुआ था उसको लेके क्या है? क्या कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन भी रद्द हो चुके हैं, लोगों ने जमीनें वापस भी लोगों को कर दी। इस पे राजनीति हुई है अब तक, पानी पे राजनीति हुई है। हम नहीं चाहते कि पानी पे राजनीति हो। राजनीति करनी है शिक्षा पे करो, राजनीति करनी है हेल्थ पे करो, बिजली पे करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो। हमने अपना चैनलाइज कर लिया नहरी पानी, 63% पे पहुंच गए 21 से, जब जिस दिन ओथ ली थी 21%, अब 63 पे पहुंच गए, 3 गुना हो गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में पार्किंग संगठन पर DK शिव कुमार का बयान। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने बेंगलुरु में बढ़ती पार्किंग समस्या को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि शहर में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके चलते पार्किंग एक गंभीर चुनौती बन गई है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए देश भर के मॉडल्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली स्थित संसद भवन के पास का पार्किंग मॉडल भी शामिल है। See, in Bangalore, we have one major problem of parking in this space. So I am looking at the models. I have seen even in front of the Parliament also, here also, which has been built long back, and there are very new models which Wipro has developed. So I am just looking up the options whether we can try to implement in Bangalore. So I am just checking all these parking places, and already my BDA chairman has already come out with a plan to do it in Malleshwaram. Let me see. We are positive. That is why I wanted to come and see personally how this functions. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का
तेजस्वी यादव को जनता नहीं सत्ता की चिंता, बोले नीरज कुमार। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा कि ये तेजस्वी यादव का बयान राजनीतिक अवसरवादिता से भरा है और ये जनभावनाओं से खिलवाड़ करता है। तेजस्वी यादव हर गंभीर घटना को राजनीतिक चश्मे में देखते हैं। उन्हें जनता की चिंता नहीं, सिर्फ सियासी फायदा चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. We are taking you to the floor. भैया आपको नहीं कह रहा हूँ यही है ना? जी जी। तो अभी इस पर कोई कमांड ही नहीं है, चलेगा नहीं मतलब कमांड नहीं, तो गाड़ी यही है ना वैसे। जी जी। Railway parking lot next to the 4150 car. Latest one is here in Transport Ministry. Transport House. At 4200 car park. 200. 7 year old. 7 to 8 years. This was a 2 मैनुअल जोन में इसमें आप आ सकते एक बार मूवमेंट करके ये मूवमेंट करते हो सर, थोड़ा all four direction is collected. Every floor, this is slab. Yes, sir. Only one car you are calling out. Yes, sir. What is the height? Charging 80 rupees. 80 rupees. Is it inaugurated during the Commonwealth Games and officially inaugurated in 2000? And all four directions. All the four directions. All the four directions. We have motor. You can see. ये होगा कौन सा वाला? 310 का 210.
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। HCA अध्यक्ष जगत मोहन राव CID हिरासत में। But I think it's very disturbing, and then I think these people, this committee, they were not behaving in a manner which the officials should behave, and I think they are not even, following the court orders. They are not respecting the court orders also. But I think whatever has happened, I think the investigation has come out. So I think the action will be taken, whatever action will be taken. But I think it's very, very disturbing, and I think the board should also intervene in this, because I think the association is affiliated to the board, and I think the board should take a very serious account of all this, what has happened. Because it directly, it affects the board's name also. I know the board is bigger. The game is always bigger than those who are in it and those who play it and those who run it. So I think it's the game is the most important thing. And I think last year also no league matches happened, and then they're selecting sides without even conducting the league matches. And I think it's also very disgraceful that they have not done anything for the game of cricket. And because of that, the ex-judge has come and he is conducting the league matches. So I think when you are the members, when you are the committee, your first aim is to help players and help the game in general, which has not happened. And I think the results are here now. So one more thing, the CID have registered a case. Yes. And I think cricket is a very big issue. It has happened, I think, because I think when you, I don't know how, things happen in the IPL, but I was given to understand that 10% of the tickets are given to the association, because since the Sunrisers own the franchise, and then, all the things which happened during the game and before the game, it is undertaken by the Sunrisers. So I think it's a rule, I think it's a board rule, I think that they have to give 10% tickets to only those people. But I think there was something happened, where, the officials have threatened them, and then I think they've closed the rooms and all these things. These are all very immature things, because you cannot do like that when you are at the helm of affairs. So means like the case has been registered like a Sunrise? No, I think the complaint was made by the Sunrisers, I don't think the complaint was made to the police, but I think it's a general complaint was made. But I think this is what was happening. So I think it's the right time that things are put into place. In your side, what your demand for them is like? No, I think my demand is that whatever has happened, whatever comes out, the action should be taken. Whoever is wrong, action should be taken. ఫస్ట్ బండి మీద అన్న తర్వాత కారు వెహికల్ తీసుకున్నాను. అవునన్నా आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में तबाही। हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ और तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाकों में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला है, वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उस दिन ऐसा तूफान आया कि कुछ भी खड़ा नहीं बचा। हमारे मवेशी सब कुछ खत्म हो गए। मेरे पास 100 बकरियां और 4 गाय थी, ये सब बह गई। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। बताना चाहेंगे उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन ऐसी तूफान आया कि भाई बिल्कुल कोई भी चीज वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ, जिसमें भेड़ बकरियां थी, गाय भी थी, हर एक चीज वहाँ पे आज की डेट में बिल्कुल
साफ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है वहाँ पे। मेरे पास लमसम कोई 100 एकड़ बकरियां थी, वो भी चला गई। उसके बाद 4 गाय थी, जर्सी गाय, वो भी चला गई। 3 मकान थे वहाँ पे, वो भी चला गए। 3 वहाँ पे हमारा परिवार 10 बंदों का था, सिर्फ वही परिवार बचा। गाय के कपड़े थे वही बचे और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। इस टाइम वहाँ देखा जाए तो वहाँ कोई ऐसा बोल नहीं सकते, वहाँ घर भी बने हुए थे, बिल्कुल साफ हो गया वहाँ पे। कितने के लोग बहे हैं? हाँ जी, ये लोग कितने बहे हैं? वहाँ 2 भाई, एक फादर मेरा रहता था। हाँ जी, 10 परिवार सारे थे हम, और 10 के हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे जितने भी थे वो कुछ नहीं बचा वहाँ पे। हम सिर्फ हमारे परिवार बचे, हम बचे बस, और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। बाकी जो लोग हैं वो कहाँ ठहरे? बाकी लोग अभी हाँ, जो स्थानीय हमारे एरिया है, जहाँ हमारा गांव है, वहाँ पे हम ऊपर रह रहे हैं। वहाँ के हमारे एरिया में हर इंसान हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वहाँ हमारे लिए हेल्प गांव वाले कर रहे हैं, हर चीज वहाँ गांव वाले कर रहे हैं, और हम वहाँ रह रहे हैं। जंगल है, वो जंगल के साथ वो एरिया है, वहाँ रह रहे हैं हम। सरकार से अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी बता रहे हैं कि भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर थोड़ा वहाँ रास्ता है ही नहीं। चलने फिरने के बाद दिक्कत है, रोडे ब्लॉक है, वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। जब वहाँ पहुंचेगी तो सुविधा सरकार हर चीज बोल रही है कि भाई हम देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं ऐसा है। ऐसी बाढ़ आपने पहले भी कभी देखी? नहीं, ऐसी बाढ़ ना कभी हमने देखी, ना कभी आई। हमारा दादा परदादा वहाँ रहता था, वो भी वहाँ पे गुजर गए, मगर वहाँ ऐसी बाढ़ कोई नहीं आई। अब वो ऐसी बाढ़ आई कि वो जो देखने के लायक नहीं है। वहाँ जमीन मेरी थी, कम से कम 7-8 बीघे जमीन थी। वहाँ पे कोई भी एरिया नहीं बचा जमीन का जो कि वहाँ देखने लायक है। कि हम सरकार से मदद करेंगे कि भाई हमें कोई सुरक्षित जगह दिया जाए, वहाँ पे आप मौका किया जाए कि भाई वहाँ के हालात, ना जगह है, ना जमीन है, ना घर है, ना बाहर है। हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह मिले जाए, वहाँ घर भी मिले, वहाँ 2 रोटी कमाने के लिए हमारे लिए जमीन भी मिले। मैं जैसे यही उम्मीद करना चाहता हूँ सरकार से, ये है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में विविध पूजा अर्चना की। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा को नमन करते हुए आध्यात्मिक माहौल में समय बिताया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में हिस्सा लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में बात की और अधिकारियों से मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मंडी जिले में 17 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा अब भी लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में थुनाग क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे राज्य में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 17 मौतें केवल मंडी जिले में हुई है। स्थिति बेहद भयावह है। 35 से ज्यादा लोग अब भी लापता है और उनकी तलाश जारी है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। जनता चाहती है ठाकरे साथ आए, बोले संजय राउत। मुंबई में राजनीतिक में संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जनता का दबाव है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए और मुंबई महानगर पालिका चुनाव एक साथ लड़े। राउत ने कहा, मुझसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है। मैंने कहा उसका गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के लिए, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। कहा कि मनसे और शिवसेना साथ में इलेक्शन लड़ रही है और ये कांग्रेस जो है वो इसमें नहीं रहेगी, किस तरीके से बात? मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है, लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ रखकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण त्रिपुरा में अचानक बाढ़, 250 परिवार बेघर। दक्षिण त्रिपुरा जिले में बुधवार को लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोह नदी जल स्तर से खतरे से ऊपर आ गई है, जिससे निकाय और सीता बाजार उप विभागों के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस अचानक आई बाढ़ के कारण 250 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। हालात को देखते हुए सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। आयो আরেকটা ঠালো যেভাবে চলে আইছি এই জলদি ঠালো চলে আইছি আর কি হবে আই এসে বিলোনিয়া শেষ রান্নাঘরের দুধ ধরে নেব না মাথা করে উঠো না মাথা করে উঠো না মাথা করে উঠো হয় अरे
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर तट के ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और गुरु वंदना का माहौल दिखाई दिया। श्रद्धालु केवल स्नान ही नहीं कर रहे थे बल्कि अपने गुरुओं का पूजन कर दान, पुण्य और वेद पाठ में लीन थे। फूल वाले खाना हुआ तो हाँ खाना हुआ
अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।